علاقائی خبروں میں آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں۔ منڈی بہاؤالدین میں یکے بعد دیگر ڈکیتی کی 3 وارداتیں۔ علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈاکو نجی بینک کے اندر سے رسید بنانے کا چکر دے کر 30,000 نقدی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ دوسری واردات نوان لوگ کے قریب موبائل کمپنی کے سیلز مین کو لوٹ لیا۔ ڈاکو اسلحہ کی نوک پر 1,68,000 روپے نقدی اور لاکھوں کے موبائل کارڈ لے گئے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مدثر امان سے۔ جی مدثر، کیا تفصیلات ہیں؟ مدثر امان، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا جی مدثر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ منڈی بہاؤالدین میں یکے بعد دیگرے 3 جو وارداتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جہاں پر شہر کے نجی بینک سے جو ہے وہ 30,000 روپے کی نقدی سے شہری کو جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ جہاں پر نجی بینک میں رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے لیے جب شہری وہاں پر پہنچا تو ڈاکیوں نے رسید بنانے کا بہانہ بنا کر اس کی جیب سے رقم جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جبکہ ڈکیتی کی دوسری واردات جو ہے وہ دوائی علاقہ نواں لوگ میں ہوئی، جہاں پر 2 ڈاکو نے موبائل کمپنی کے سیلز مین سے 1,68,000 روپے نقدی اور تقریباً 180 موبائل کارڈ جو ہے وہ چھین کر وہاں سے فرار ہو گئے، اور مزاحمت پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی اس کو بنایا گیا ہے۔ جبکہ تیسری واردات جو ہے وہ منشی محلہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ کے سامنے پیش آئی ہے، جہاں پہ 2 مسلح ڈاکو نے اسلحہ کی نوک پر دکاندار عثمان بھٹی کو گھر داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہزاروں روپے کی نقدی سے جو ہے اور محروم کر دیا، اور موبائل فون جو چھین کر جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ جبکہ یہ ڈاکو نے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر 3 وارداتیں جو ہے وہ کی ہے، جس سے علاقے میں جو ہے وہ کافی خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ جبکہ اس طرح یکے بعد دیگرے وارداتیں ہونے سے جو ہے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بھی جو ہے وہ بھی اٹھتا ہے۔ جی اچھا مدثر امان، یہ بتائیے گا کہ پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ کیا ناکے لگا کر کچھ گرفتاریاں کی گئی ہیں مشکوک افراد کی؟ جی، ناکے تو مسلسل جو ہے پولیس کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، رات دیر تک جو ہے وہ ناکے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح جو مسلسل یکے بعد دیگرے جو ہے وارداتیں ہونے سے جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان جو ہے وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ اور جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو اپلیکیشن ہے وہ موصول ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جو کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ صحیح مدثر امان، آپ کا بہت شکریہ تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں ڈی ایس پی اسد اللہ خان بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے سرگودا مہر عثمان سے خصوصی ملاقات کی۔ ڈی ایس پی اسد اللہ خان نے بتایا کہ تحصیل ساہیوال میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تحصیل ساہیوال اور بج میں متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈی ایس پی اسد اللہ خان نے کہا کہ تحصیل ساہیوال میں جرائم کا خاتمہ میرا اولین مقصد ہے۔ جرائم کے خاتمے اور علاقے میں ہونے والی چھوٹی موٹی وارداتوں کو روکنے کے لیے عوام پولیس کا ساتھ دیں تاکہ جرائم کو روکا جا سکے۔ پیروسن میں بااثر افراد کی جانب سے بیٹی کے اغوا کی کوشش، باپ پر تشدد، مظلوم والد کے انصاف کے لیے دعائیں۔ پیروسن میں بااثر افراد کی جانب سے بیٹی کے اغوا کی کوشش، باپ پر تشدد کیا گیا۔ پولیس نے بااثر ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے رقم لے کر چھوڑ دیا ہے۔ واقعے کو 4 روز گزرنے کے باوجود بھی مقدمہ درج نہ ہو سکا، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کے باپ نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ساہیوال میں ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے شہر میں ٹریفک سگنلز عرصہ دراز سے خراب ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں خابر علی چودھری کی یہ رپورٹ۔ بنیادی تربیت کے حصے میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لال، پیلی اور سبز لائٹ کا کیا مطلب ہے، لیکن پاکستان کے حالات کے تناظر میں اس میں ترمیم ناگزیر ہے۔ یعنی بند لائٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ 1868 میں پہلی بار لندن میں استعمال ہونے والی اس قدیم ایجاد یعنی اشاروں کو بہتر اور مؤثر بنا کر اس کا استعمال بھرپور کیا گیا۔ وہیں پاکستان میں یہ ایجاد غیر مؤثر سے ابتر ہوتی ہوئی اب نایاب ہونے لگی ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ اس کا جواب مل جائے تو شاید بہتری بھی آ جائے۔ ساہیوال میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہی ٹریفک کے مسائل بھی سر اٹھانے لگے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کے ٹیکسوں سے ساہیوال کی 4 اہم چوکوں میں ٹریفک سگنلز نصب کیے گئے ہیں، مگر ایک عرصے سے انتظامیہ کی طرف سے مناسب نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ جن میں کسی کی لائٹ خراب تو کچھ بالکل ہی بند ہیں، جس کی وجہ سے ساہیوال کی عوام بہت پریشان ہے۔ آئے روز ٹریفک سگنلز کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں۔ ان راستوں سے ضلع انتظامیہ اور ساہیوال کے اعلیٰ افسران روزانہ کی بنیاد پر گزرتے ہیں، مگر یہ ٹریفک سگنلز ان کی توجہ
पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला और थाना जहानिया पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई बैनुल-अज़राई डकैत गैंग के 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारी मिकदार में असलहा, गोलियां, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मसरूफ थे। देखते हैं अमजद हुसैन बुट्टर की ये रिपोर्ट। पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला और थाना जहानिया की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 5 खतरनाक डकैत गैंग के मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला इंचार्ज मलक सलीम मेतला अपने एहलकारों के हमरा मामूल की गश्त पर थे कि खानेवार रोड पर वारदात करने की इतला मसूल हुई, जिस पर पेट्रोलिंग पुलिस और थाना जहानिया के एएसआई राना जुल्फकार भारी नफरी के हमरा डकैतों का पीछा किया और घेरा डालकर खतरनाक 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोलियां, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हो गए हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज मलक सलीम मेतला ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तला मिली कि चंद अफराद जो हैं वो डकैती की नीयत से 59 पुली के साथ मौजूद हैं। अगर फौरी तौर पर रेड किया जाए तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो इस ख़ास इत्तला पर मैंने पेट्रोलिंग पुलिस की बकाया नफरी अफसरान को बुलवाया और एक रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मुलजमान विद असला हमने इनको गिरफ़्तार किया। जो इनको दरियाफ्त किया, इनसे बातचीत की तो ये डकैती की नीयत से छुपे हुए थे कि हमने मोटरसाइकिल छीनने थे, पहले भी हम मोटरसाइकिल छीनते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला के इंचार्ज एसआई मलक सलीम मेतला और थाना जहानिया के एएसआई राना जुल्फकार की सरबराही में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 5 डकैत गिरफ्तार हुए हैं। उनसे भारी असला, गोलियां और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। इस कारकर्दगी पर डीपीओ खानेवाल ने इन टीम को शाबाश दिया और इनकी कारकर्दगी को सराहा है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, टीवी टुडे न्यूज़। कसूर के नवाही इलाके को जाकर सिंह में सरकारी स्कूल 1 साल से बंद, तैनात 4 असातिज़ा घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। स्कूल में 200 बच्चे ज़ेर तालीम थे। बंद होने का बायस इमारत भूत बंगले में तब्दील। सीईओ एजुकेशन ने स्कूल की बंदिश पर इजहार लाइल्मी कर दिया है। सरगोदा 22 रोज गुजरने के बावजूद भी 14 साल बच्चा बाजियात ना हो सका। लवाहिकीन ने थाना अर्बन एरिया के बाहर एहतजाज किया। सरगोदा के इलाके कोट फरीद में 22 रोज कबल अगवा होने वाला 14 साल का रमजान ताहाल बाजियात ना हो सका। थाना अर्बन एरिया पुलिस टालमटोल करने लगी। लवाहिकीन का कहना है कि अगवाकारों की धमकी आमेज कॉल आ रही हैं। पुलिस को मुकम्मल डेटा देने पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। लवाहिकीन ने थाना अर्बन एरिया के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। थाना लुड्डन की हदूद मौजा टूट हाकम में गरीब खातून पर बाअसर जिम्मेदारों का तशद्दुद। खातून ने फसल का नुकसान गिरने पर मना किया तो इलाका के बाअसर जिम्मेदार तैश में आ गए। मुतासिरा खातून का कहना है कि ये मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मैंने रकबे में अब मकई की फसल काश्त की हुई है और 2 कमरे भी तामीर किए हुए हैं और अब ये बाअसर अफराद जिन्होंने मेरे रकबे में ईंटें भी रखी हुई हैं और नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मैंने थाना लुड्डन में दरख्वास्त भी दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासिरा खातून ने डीपीओ विहाड़ी, आरपीओ मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गग्गो मंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का डेवलपमेंट रिव्यू के हवाले से मुख्तलिफ थाना जात की ज़ेर तामीर इमारतों का दौरा किया। जबकि गग्गो मंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने डेवलपमेंट रिव्यू के हवाले से मुख्तलिफ थाना जात की ज़ेर तामीर साइट्स का विजिट किया। थाना मॉडल टाउन और थाना गग्गो की ज़ेर तामीर बिल्डिंग के तामीराती काम का जायजा लेते हुए काम की रफ्तार और क्वालिटी को चेक किया। इस मौका पर डीपीओ बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने हिदायत देते हुए कहा कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी थाना की नई और कुशादा बिल्डिंग की सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुरीद के सलामतपुरा के रिहायशी मेहनतकश को मुतअद्दिद अफराद ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। हालत अबतर होने पर छोड़कर फरार हो गए। मेहनतकश जुबैर ने पुलिस को बताया कि मफरूद मुलजिमों की निशानदही पर तशद्दुद किया गया। बाअसर अफराद को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। जुबैर को फौरी THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अली खाना ने IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। और अब खबर यह है कि गुजर खान में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें आए रोज वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाती है। थाना गुजर खान में चोरी और डकैती की बेदर पे वारदातों ने पुलिस कारकर्दगी का फूल खोल दिया है।
भटाना रोड पर वारदात में डाकुओं ने शहरियों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। हमजा अली खयानी के मुताबिक भटाना रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी को रोक लिया, असलहा दिखाकर परस और रिश्तेदार खातून से बैग छीन लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोहड़ा नूरी को कोरोना टीम की जानिब से सील कर दिया गया। तालिबात और उसातिज़ा के सैंपल ले लिए गए। गुजरखान में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोहड़ा नूरी को सील कर दिया गया। साबिक चेयरमैन यूसी मोहड़ा नूरी राजा इरफान अजीज का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर स्कूल को सील कर दिया गया। चिश्तियां जिले पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में मुनशियात और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग की हिदायत पर जिले पुलिस ने एलियट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन 40 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी ब्लॉक सुगरा सदफ की पंजाबी कहानियों की किताब वर्हा मचाया की तकरीब रोनमाई की तकरीब पंजाबी खोजगढ़ मुस्तफाबाद में हुई। तकरीब में डायरेक्टर पंजाबी खोजगढ़ इकबाल कैसर, मारूफ इशारा, परवीन मलिक, आदिल मिनहास लाहौरी और दीगर ने शिरकत की। किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रीन ने कहा कि डॉक्टर सुगरान सदफ की किताब में मौजूद कहानियां हमारे मुआशरे की अक्कासी करती हैं। ये सिर्फ औरत की कहानियां नहीं बल्कि मसलूमियत की कहानियां हैं। नवाब शाह में पार्क पर कब्जा के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि लबदुजरा वाह पार्क शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हिदायत पर शहरियों की तफरीह के लिए बनवाया गया था, लेकिन पार्क की जमीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर रखा है। नवाब शाह की शहरियों के साथ सख्त नाइंसाफी है। शुरा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अवामी तफरीह पार्क को जल्द अज जल्द कब्जा ग्रुप से वागुजार करवाया जाए। मोटरवे पुलिस का खराब टायर, धुआं देने वाली और फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की है और ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए आगाही के साथ जुर्माने भी किए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से कंजार के मुकाम पर गैर मयारी और अनफिट CNG सिलेंडर, घिसे हुए टायरों, काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। सेक्रेटरी RTA की ज़ेर निगरानी होने वाली ट्रैफिक आगाही मुहिम का मकसद हादसात से बचाव और मुसाफिरों को महफूज रास्तों की फराहमी यकीनी बनाना है। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी अचानक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल छठा पहुंच गए। वजीर तालीम ने स्कूल में कोरोना SOPs अमल दरामद का जायजा लिया। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी सूबाई मशीर सैयद एजाज शराजी से इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए छठा पहुंचे। ताज़ियत से वापसी पर सूबाई वजीर तालीम अचानक बॉयज हाई स्कूल छठा पहुंचे और स्कूल में किए गए कोरोना SOPs का जायजा लिया। सईद गनी ने स्कूल में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी पर हर सूरत अमल करने की हिदायत की। जैकबाबाद में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरी इत्तेहाद समेत दीगर जमातों के कारकुनों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली शहीद अल्लाह बख्श पार्क से प्रेस क्लब तक निकाली गई। शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था कि म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस गली मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं, सड़कों पर सेवरेज का पानी जमा है और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है, जबकि अस्पतालों में अद्वियात और इलाज की सहूलियात भी न होने के बराबर है। हुक्काम मामले का नोटिस लें और जैकबाबाद के शहरियों के इकदाम करें। शिकारपुर में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास से चेयरमैन कोरोना पेंडेमिक कमेटी MNA आबिद खान और डिप्टी कमिश्नर नवीद रहमान लाड़क ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस दोबारा जिला भर में सर उठा रहा है, जिसको रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर के दिन चेहलम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। लाड़काना पुलिस 2 माह बाद भी कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिमों की अदम गिरफ्तार के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके SP चौक कोटर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि मकतूल के वर्सा और दीगर का कहना था कि 2 माह पहले अंगाबाई पास पर काजी खान माची को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में कोई पेशरफ नहीं कर सकी। मुलजिमान ताहाल आज़ाद हैं। उन्होंने SSP लाड़काना और DIG लाड़काना को कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है।
और अब खबर यह है कि पत्तोकी थाना सदर फूलनगर पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जा से नाजायज असलहा और मनशियात बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पत्तोकी थाना सदर फूलनगर पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जा से नाजायज असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।